ओके। तो इंग्लिश कंपलसरी क्लास 12 फेडरल बोर्ड का ये गेस्ट पेपर है, जो कि बिल्कुल जो नया पैटर्न आया है फेडरल बोर्ड का अपलोड हुआ है अकॉर्डिंग टू एसएलओस, उसके अकॉर्डिंग ये बिल्कुल गेस्ट पेपर है आप लोगों के लिए। तो आप लोग इस पेपर के थ्रू काफी हेल्प ले सकते हैं कि कैसे आप लोगों ने पेपर की तैयारी करनी है, किस तरह का पेपर अपीयर होगा आप लोगों का, और आप लोगों के लिए क्या हेल्पफुल चीजें रहेंगी। तो अब ये न्यू पैटर्न के बिल्कुल अकॉर्डिंग है। तो न्यू पैटर्न इस पेपर के में फॉलो किया जाएगा ताकि आप लोग उसको नोट कर सकें। सेक्शन ए में आप लोगों के पहले की तरह अभी भी 20 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे, राइट। तो अब एमसीक्यूज में फर्स्ट एमसीक्यूज क्या है? एन आयरॉनिक कमेंट इज पास्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। चार ऑप्शन है, आपने पहले की तरह अभी ऐसे चूज द करेक्ट सेंटेंस आ जाएगा। नंबर टू, dash that I can't see any of the mountains following weather condition may complete the sense of the sentence. Third, which of the following sentences has the use of transitional device of contrast? Number four, all the flaws may be rectified if taken into consideration for positive disposition from the context. Guess the meaning of the underlying word out of the following. तो rectified करना, improve करने को कहते हैं, correct करने को कहते हैं, किसको कहते हैं आपने ये चेक करना है। तो मैं ऑप्शन भी साथ साथ आप लोग देखते जाएं ताकि वीडियो की सूरत में आपको ऑप्शन भी नजर आते जाएं। Fifth one, the purpose of using a variety of poetic devices in poetry by the poet is to. Sixth one, which paragraph of the essay may grab the interest of the reader and identify the topic as well as the purpose? Number seven, cloud nine idiomatically refers to. इसके ऑप्शंस है any weather, a state of happiness, difficulties and diversities and raining heavily. Number eight, oh listen for the whale profound is overflowing with the sound. Which of the following poetic device is used in the poetic line? Personification, metaphor, hyperbole. तो ये आपने चेक करना है। Ninth है if you will work in cooperation forgetting the past, burying the hatch, you are bound to succeed. Identify with the following points out the correct meaning of the sentence. 10th है which of the following sentences contain rhetoric. इसके चार ऑप्शन आप देख सकते हैं। नंबर 11 सॉरी, I hope to stand first in the class. The underlined part of the sentence is an. Number 12, always believe the merciful Lord and initiate the step. Pick the correct preposition. Number 13, I saw a boy running. The underlined word is running. आपने बताना है verb है, noun है, participle है। 14, Lord of the Flies, a novel by William Golding, had the loftiest themes about children. The underlined part of the sentence is 15. Which of the following sentences has an appropriate conditional? 16. All the people of the world are badly affected by COVID-19 in different aspects during these 2 years. This is a simple, compound, complex or compound complex sentence. 17. The person who is not able to pay debt. वो क्या होगा ये आपने बताना है। अब ये जनरल एमसीक्यूज हैं, ये पर्टिकुलर नहीं है। 18. They made him the president through mutual consultation of the members. Object complement in the sentence is him, consultation, the president, the members. 19. Which of the following sentence has incorrect prefix? आपने बताना है कि जो नीचे चार ऑप्शन है इनमें से कौन से का प्रीफिक्स सही नहीं है। 20. Which of the following sentences has correct narration? नीचे चार ऑप्शन है जिसमें नरेशन की भी है, आपने बताना है कि इसमें किसकी नरेशन करेक्ट है। तो ये सेक्शन ए आप लोगों का होगा 20 मार्क्स का क्लास 12 इंग्लिश का। अब आते हैं हम सेक्शन बी पे, जो कि 34 मार्क्स का है। 20 मार्क्स वो, 34 मार्क्स सेक्शन बी के। टोटल टाइम 2.35 आवर्स एंड 80 मार्क्स आपके सब्जेक्टिव के बनेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो जो कि 28 मार्क्स का बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर एनी 6 क्वेश्चन इंक्लूडिंग क्वेश्चन नंबर 1 अपेंडेड टू इट। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है अबाउट समरी राइटिंग इज कंपल्सरी कैरिंग 8 मार्क्स व्हाइल द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स ईच। तो मतलब आपने पार्ट 1 में जो है क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 1 है उसमें समरी लिखनी है और वो कंपल्सरी होगा।
और समरी के 8 नंबर हैं। जैसे एक लॉन्ग क्वेश्चन के 8 नंबर होते हैं, तो इस तरह समरी के 8 नंबर हैं। तो आपने इस पैराग्राफ की, जो गिवन पैराग्राफ होगा वो कुछ भी हो सकता है, आपने प्रैक्टिस करके जानी है, उसकी समरी लिखनी है 8 नंबर की। लेकिन बाकी जो क्वेश्चन होंगे वो 4-4 नंबर के होंगे। ठीक हो गया? तो आपके पास एक पैराग्राफ है, अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लैनेट बियॉन्ड अवर सोलर सिस्टम इज स्टिल इन इट्स इन्फेंसी। ये सारा पैराग्राफ आप लोग देख लें। ठीक है? पिक्चर्स लेनी है या अगर आपने स्नैप्स लेने हैं इसके, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस पे जब आएंगे आप लोग, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो कि कंपलसरी है, राइट डाउन द समरी ऑफ द पैसेज एंड सुटेबल टाइटल। तो समरी है 7 नंबर की और 1 नंबर का टाइटल, तो टोटल 8 नंबर। ये आपका कंपलसरी है, आप इसको अटेम्प्ट लाजमी करेंगे। उसके बाद नंबर 2, डिफाइन exoplanets in your own words. Number 3, our understanding of the planet beyond our solar system is still in its infancy. Express your own opinion. Number 4, do you believe that Hubble initiated the way for great discoveries? Fifth, in what ways the planet passes between us and its stars? Number 6, what does the writer mean by stars habitable zone? Seventh had briefly discussed the revelation of Hubble. एंड 8 है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द लाइट ईयर्स। तो इसकी टेक्निक ये होती है बच्चों कि आप पहले ये वाले क्वेश्चन रीड करें और फिर इसके बाद पैराग्राफ को रीड करके आप उसको आंसर्स करें। लेकिन जो चेंजेस आई हैं वो आई है कि आपने समरी राइटिंग और उसका टाइटल जो है वो मस्ट क्वेश्चन करना है आपने 8 नंबर का, बाकी 4-4 नंबर। तो आप सिर्फ इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर कर 28 मार्क्स आप लोग सिक्योर कर सकते हैं। 28 मार्क्स, 7 ऑब्जेक्टिव आपको पास करा सकता है इजीली, बाकी आप करें ना करें। लेकिन अगर आप लोगों ने नंबर लेने तो जारी बात है आप सारा करेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आप जब जाएंगे 28 मार्क्स का हमने एक क्वेश्चन देख लिया। नंबर 3 क्वेश्चन जो होगा वो है इसका पार्ट ए है, ये आप पार्ट ए लिखा हुआ है। रीड द फॉलोइंग पोएटिक एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन अपेंडेड टू इट। तो आपको एक पोएटिक फ्रेज दिए हुए हैं, विल यू वॉक इनटू माय पार्लर सेड द स्पाइडर टू द फ्लाई, द प्रीटिएस्ट लिटिल पार्लर दैट एवर यू डिड, और ये सारा लिखा हुआ है। तो ये अच्छा, इसमें 2 मार्क्स हैं, मतलब 3 क्वेश्चन है आपके पास। हाउ डज द स्पाइडर लुर द फ्लाई, व्हाई इज द कॉर्डियल इनविटेशन इन वेन, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड बाय द पोएटिक इन द स्टैंजा। तो ये 2 मार्क्स का ईच क्वेश्चन है, टोटल मार्क्स 6 हैं इसके। तो 28 वहां से, 6 नंबर यहाँ से, टोटल हो गए 34, क्योंकि ये सेक्शन बी जो था वो था भी 34 का, यू कैन सी ये रहा। अच्छा, ये आप लोग देखें, इसके आंसर लिखने की ट्राई करें। अच्छा, या आप क्या कर सकते हैं कि आपके पास एक और फ्रेज भी दिया हुआ है, वो एक फ्रेज था, ये एक और फ्रेज दिए हुए हैं, मतलब स्टैंजा दिए हुए हैं, आप इसको पढ़कर इसके क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो ये आपके पास चॉइस है, या तो आप ऊपर वाले करेंगे या आप ये नीचे वाले करेंगे। इन दोनों में से किसी एक के क्वेश्चन आप आंसर करेंगे। 2 मार्क्स का ईच है, तो 6 नंबर बन जाएंगे। तो यहां तक आपके 34 नंबर बन गए। अच्छा, पार्ट बी, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन। ठीक हो गया? Note this part of the paper is based on the question from the novel, consists of 6 marks adjusted in the section C, being not included in breakup, however it is the compulsory part. Okay, ये जो पार्ट है ये पेपर में इंक्लूड इस अभी नहीं था, लेकिन ये कि नेक्स्ट पार्ट में जो आपके लोग होंगे लास्ट वन, मतलब बोर्ड के एग्जाम, फेडरल बोर्ड के, उसमें इंक्लूड लाजमी होगा। ओके, अच्छा, ये आप लोगों के लिए फ्रेज इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, ये कुछ बच्चों के लिए था, लेकिन ये आप लोगों के लिए नहीं है, आप लोगों के लिए कंपलसरी है। अच्छा, सेक्शन सी, attempt all question, write an essay in about 250 to 300 words on any one of the following topics। तो आपने क्वेश्चन जो 4 है उसमें आपने 2 टॉपिक दिए हैं, एक इन्फ्लेशन, उसकी आउटलाइन है, डेफिनेशन, प्राइस हाइक, मेजर प्रॉब्लम ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, कॉजेज, नेचुरल क्लाइमेटीज एंड पुअर गवर्नेंस, इन्फ्लुएंसेस ऑन पब्लिक, प्रिकॉशंस टू कंट्रोल, कंक्लूजन, and social media introduction, different form, blessing of technology, curse of technology, impacts on student life, necessary precaution, required restriction and conclusion। ये 12 मार्क्स का आपने ऐसे लिखना है, जिसमें आपने 250 से 300 वर्ड्स लिखने हैं। ठीक है, 250 से 300 वर्ड्स। तो आप अच्छी खासी प्रैक्टिस करके जानिए, क्योंकि टॉपिक कुछ भी आ सकता है, आपने उसको इतने वर्ड्स मिनिमम लिखने हैं। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 5 पे जाएंगे। तो देयर आर 6 एरर्स ऑफ नाउन, वर्ब, preposition, article, adjective, etc. in the given paragraph. Rewrite the paragraph after correcting the errors. Underline the corrected words. तो ये आपके पास एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इसमें 6 एरर इंडिकेट किए हुए, एक नाउन का, वर्ब का, प्रपोजिशन का,
आर्टिकल का एडजेक्टिव का एक पैराग्राफ में आपने उन एरर्स को रेक्टिफाई करना है। ठीक हो गया। सिक्स क्वेश्चन है, यूज एनी सिक्स ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स इन सेंटेंसेस। अराउंड द क्लॉक, डॉग इन द मैनेजर, ये देखें स्पेलिंग का मसला है कोई। फेयर प्ले, एट वंस विट्स एंड, एट लॉस, ब्रेकअप, ब्लैकआउट, कास्ट आउट। ठीक हो गया। तो ये ए में आ जाएंगे आपके पास एरर्स, बी में आ जाएंगे आपके पास 6 इडियम। एक आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं, 2 की चॉइस है और 1 मार्क का 1 है। ये सी पार्ट नरेशन की बात हो रही थी, जो ऊपर ये मैंने लिखा था, ये आप लोगों के लिए नहीं था। तो ये सी पार्ट नरेशन, जिसमें आपने चेंज द फॉलोइंग कन्वर्सेशन इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन। तो ये डायरेक्ट में है, आपने इसको इनडायरेक्ट में करना है। 6 नंबर का ये। Question number 6, being a research officer in education department, write a report on the to the district education officer about the increasing number of COVID cases among the students in different schools of your area. Following points are supposed to be covered. ये पॉइंट दिए हुए, आपने इसको कवर करते हुए 8 नंबर का क्वेश्चन है और एक रिपोर्ट लिखनी है। तो रिपोर्ट राइटिंग इज कंपलसरी। तो आपने ये 6 क्वेश्चन में रिपोर्ट राइटिंग करनी है। ठीक हो गया। बोर्ड में, फेडरल बोर्ड के पेपर में 7th क्वेश्चन आपके पास जो है वो 7th है, यूज अप्रोप्रिएट ट्रांजिशनल डिवाइसेस इन ऑल ब्लैंक्स टू कंप्लीट द प्रोसेस, यूज ईच ट्रांजिशनल डिवाइस ओनली वंस। तो ये आपको बोथ सिमिलर टू, लाइक वाइज, फॉर एग्जांपल, हाउएवर, ये वर्ड्स दिए हुए हैं। 8 नंबर का ये है। मैं जितने भी ब्लैंक्स हैं इनको कवर करना है, इनको फिल करना है, लेकिन यूज वही वर्ड करना है। और एक वर्ड एक बार यूज कर सकते हैं, आप बार बार यूज नहीं कर सकते। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है 8 नंबर का। बच्चों आपके पास ये आपके पास 8 नंबर का रिपोर्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास एरर इंडिकेट करने, इडियम्स लिखने हैं और नरेशन चेंज करनी है। मार्क्स सबके मेंशन है सेक्शन सी में अपने में शामिल है। और ये तमाम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ऐसे लिखना है, कुछ करें ऐसे लास्ट में लिखें। देन स्टैंजा है और पैसेज राइटिंग है और ऑब्जेक्टिव है। तो हमने सब चीजें कवर कर ली हैं। आई होप कि आप लोग अब इसके अकॉर्डिंग फेडरल बोर्ड के पेपर के लिए तैयारी करेंगे।